Students, now we are starting with question number 2 of variable income security. Last lecture में मैंने एक क्वेश्चन किया था for variable income security and 6 points were recorded. Try to recollect that. एक एक करके याद करने की कोशिश करो. Number 1 was we never draw any timeline for variable income security. हम लोग timeline नहीं बनाते हैं students, okay? अगर आपको याद हो फॉर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पहले हम लोग क्या करते थे, ये टाइमलाइन बनाते थे एंड वी यूज्ड टू अरेंज द अकाउंट वी यूज्ड टू अरेंज ट्रांजैक्शंस ऑन दिस टाइमलाइन. ठीक है, तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी में कभी टाइमलाइन मत बनाना स्टूडेंट्स, नेवर. सो डोंट ड्रॉ एनी टाइमलाइन. फर्स्ट हमने ये लिखा था. सेकेंड क्या था स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट विच वी रिकॉर्डेड वाज वी नेवर कैलकुलेट डिविडेंड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन. डिबेंचर्स के क्वेश्चन में क्या करते थे, हर ट्रांजैक्शन का वेदर ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और क्लोजिंग बैलेंस, हर ट्रांजैक्शन का हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करते थे. इट वाज कंपलसरी. बट फॉर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी ओपनिंग बैलेंस हो, परचेज हो, सेल हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, कभी डिविडेंड कैलकुलेट मत करना. दैट वाज द सेकेंड पॉइंट. देन डिबेंचर्स के क्वेश्चन में, फिक्स इनकम सिक्योरिटी के क्वेश्चन में देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट. अगर आपको याद हो, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट. देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर्स फॉर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी. ओके, फिर स्टूडेंट्स नया पॉइंट था बोनस शेयर्स का, राइट शेयर्स का था एंड डिविडेंड का. दैट आई विल डिस्कस वंस अगेन. तो पहले हमेशा ध्यान रखना, टाइमलाइन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे. Dividend, never try to calculate dividend for every transaction, and there is no concept of X income. Debentures में होता था X interest कम interest, यहाँ पे ऐसा concept नहीं है. We start with question number 2. On 1st April 2007, Mr. Ajay had 30,000 equity share. Had indicates opening balance. Mr. Ajay had 30,000 equity shares in Wipro Limited. Face value of share was rupees 10 each, but his purchase price was rupees 14 per share. 1st July 2007, Ajay purchased 6,000 additional equity shares of the same company for a price of rupees 16 per share. On 31st July 2007, directors of the company announced a bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 6 shares held. Bonus shares were received on 5th August 2007. Right issue was as per the following terms. Right shares to be issued to the existing holders on 17th August 2007. Rights offered were at the rate of 1 share for every 3 shares held at rupees 15 per share. Full amount was payable by 30th September 2007. Existing shareholders may, to the extent of their entitlement, either wholly or in part, transfer their right to outsiders. Ajay exercised his option and subscribed for 60% of his entitlement, and balance of right he sold to Vikas for a consideration of rupees 1.5 per share. Dividend for year ended March 2007 at the rate of 14% was declared by the company and received by Ajay on 22nd October 2007. On 1st November 2007, he sold 25,000 shares at rupees 15 per share. Prepare investment account of equity shares in Wipro Limited for year ended March 2008 in the books of Mr. Ajay. Apply accounting standard 13. Market price of equity share was rupees 14 as on 31st March 2008. So it is books of Ajay. Books of Mr. Ajay. He has purchased equity shares of which company? Wipro Limited. So equity shares in Wipro Limited account. Okay. So same format account तो same होता है इसका. Date just like debentures. Particulars, working note, face value. Instead of interest we write dividend and amount column. Again date, particulars, working note, face value, dividend, amount. Okay.
So, and please, when we start, we never draw any timeline for variable income security. Okay? तो कभी timeline नहीं बनाएंगे variable income security का अगर क्वेश्चन है, डिबेंचर्स का है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वे स्टार्ट विद दैट टाइमलाइन. यहाँ पे टाइमलाइन बनाना नहीं है, डायरेक्ट वापस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंड विल स्टार्ट पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन. 1st April 2007, Ajay had, clearly they have used the term had, so opening balance. 1st April 2007. Ajay had, so to balance brought down. How many shares he had? 30,000 equity shares in Wipro Limited. Students, 30,000 number है वो, रुपीज नहीं लिखा है, 30,000 खाली लिखा है. So 30,000 multiply by face value per share is 10. आगे मेंशन किया face value of share was 10. So 30,000 to 10 करेंगे तो we get face value which is 3 lakh. Never try to calculate dividend. डिबेंचर से क्वेश्चन में यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. नेवर ट्राई टू कैलकुलेट डिविडेंड, सो डिविडेंड भूल जाओ. कॉस्ट देखो आगे, बट हिज परचेज प्राइस वाज 14 पर शेयर. 30,000 शेयर परचेज किया है एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर. सो 30,000 इंटू 14 इज 4,20,000. 4,20,000. सो अप्रैल में ट्रांजैक्शन हो गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट मंथ मई है, मई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जून में भी नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, 1st July 2007, Ajay purchased. So 1st July 2007. 1st July 2007. Ajay purchased. So investment account debit to bank account. Purchase हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे हमेशा. So वेरिएबल में भी फॉर्मेट ट्रांजैक्शन सेम है स्टूडेंट्स. ओके, ओपनिंग बैलेंस परचेज डेबिट में लिखना, सेल्स क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, जस्ट लाइक दैट डिबेंचर्स, उसमें कोई चेंज नहीं है. 1st July 2007, अजय परचेज 6,000, परचेज किया 6,000 शेयर्स इनटू 10, सो फेस वैल्यू कम्स टू 60,000. फेस वैल्यू 60,000. नेवर ट्राई टू कैलकुलेट डिविडेंड. ओके, मत करना. क्यों नहीं करते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज वी डोंट नो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स. इट इज अननोन. कब पता चलता है? जब साल खत्म होगा 31 मार्च. जिस कंपनी का ये इक्विटी शेयर्स है विप्रो लिमिटेड का, वो साल जब खत्म होगा आफ्टर 31 मार्च दे विल ड्रॉ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर अप्रूव होगा, फिर डायरेक्टर्स विल रिकमेंड द डिविडेंड, फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, देन फाइनली दैट डिविडेंड इज डिसाइडेड स्टूडेंट्स. ठीक है, तो एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो कि विप्रो लिमिटेड कितना डिविडेंड देने वाली है. ओके, सो दैट इज अननोन. इसके लिए वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी है. डिविडेंड प्रॉफिट पे डिपेंड करता है. कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा. कंपनी को अगर लॉस हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा. सिंस इट इज अननोन, इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी. इसी के लिए इसका डिविडेंड नहीं लिखा जाता. इट इज अननोन स्टूडेंट्स. So 1st July 2007, Ajay purchased 6,000 additional equity shares of the same company at a price of how much? 16 per share. 6,000 shares into 16 करो, so 96,000. 96,000 shares वैल्यू में उसने परचेज किया. ओके, सो 1st July 2007 इज ऑल्सो डन. थर्ड लाइन में देखो, 31st July 2007, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इश्यू. स्टूडेंट्स देखो वहां पे क्या लिखा है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड. ओके, अनाउंस का मतलब डायरेक्टर्स प्रॉमिस कर रहे हैं. तो प्रॉमिस के डेट पे हम लोग कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान रखना. अनाउंसमेंट ना हमारे लिए, अनाउंसमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस. ये एक तरह का प्रॉमिस है. सो ऑन दिस डे no transaction to be recorded. जब भी अनाउंसमेंट देगा ना तो उस दिन कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत करना. ठीक है, उसका मतलब क्या है? वो इंडिकेट कर रहे हैं. सो अनाउंसमेंट मीन्स प्रॉमिस. नो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड. डायरेक्टर्स हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं 31st जुलाई को. दे आर प्रॉमिसिंग कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इश्यू. सो डायरेक्टर्स ने प्रॉमिस किया, ठीक है, हमने सुन लिया. बट जिस दिन एक्चुअली बोनस मिलेगा, एक्चुअली जिस दिन राइट शेयर्स मिलेगा, उस दिन हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. सो प्लीज रिमेंबर, अनाउंसमेंट इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रॉमिस. इंफॉर्मेशन हमको इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई आपको राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स मिलेगा. सो प्लीज नेवर रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन अनाउंसमेंट डेट. आगे देखने का एक्चुअली कब मिला है. देखो आगे मेंशन किया है, bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 6 shares held. So working note number 1 करते हैं. बोनस दिया है उन्होंने.
वर्किंग नोट नंबर वन किसकी बात कर रहे हैं वो लोग? बोनस की बात कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज द रेशियो? लास्ट टाइम भी मैंने किया था, हेल्ड एंड बोनस. वापस पढ़ लेते हैं. बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड. जिसके पास 6 शेयर है उसको एक बोनस मिलेगा. ओके, इफ आई एम हेल्डिंग 6 शेयर्स, अगर अजय के पास ये कंपनी का 6 शेयर है तो उसको एक बोनस मिलेगा. ओके, बोनस इज अ गिफ्ट गिवन बाय द कंपनी, ध्यान रखना. ओके, अभी नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड देखना है हमको, तो इजी है. फेस वैल्यू पहला 3 लाख है, सेकेंड वाला 60,000 है, तो 3 लाख प्लस 60, तो टोटल फेस वैल्यू 3,60,000 है. ये फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है. हियर वी राइट नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, तो इसको डिवाइड बाय 10 करो. 3,60,000 when we divide by 10, number of shares is 36,000. अभी बोनस कितना? So we'll find that answer. Cross multiply 36,000 into 1 divide by 6. So 6,000 is the number of bonus shares. उसका इसे सर्कल कर लेता हूं. Okay, so we got the answer as 6,000 bonus shares. 6,000 number है students. Okay, so अभी बोनस कौन से डेट को मिलेगा आगे मेंशन किया है. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 6 shares held. Bonus shares were received on 5th August 2007. 5th August 2007. Bonus is a gift. तो टू बैंक तो नहीं लिख सकते. So we'll write to bonus account. Working note number 1. 6,000 shares आया, multiply by 10 करो because here we record face value, तो 60,000. Never try to calculate dividend. Bonus is a gift. Its cost is always nil. याद आया, मैंने आपको लास्ट टाइम नोट्स में लिखाया था. Try to remember that. पहला 3 पॉइंट का था, never draw any timeline. Okay, never try to calculate dividend. थर्ड था, never, there is no concept of X and come for equity shares. Okay, फिर उसके बाद मैंने बोनस का नोट लिखाया था. बोनस इज अ गिफ्ट एंड प्लीज मैम बोनस किसको दिया जाता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ओके, सो बोनस इज अ गिफ्ट, इट्स कॉस्ट इज ऑलवेज निल. तो देखो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया, उसका फेस वैल्यू लिखा, बट कॉस्ट इज ऑलवेज निल. तो कॉस्ट भूल जाओ, बोनस का कॉस्ट कभी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वो फ्री में मिलता है. राइट इश्यू, नेक्स्ट पैरा. राइट इश्यू वॉज एज पर द फॉलोइंग टर्म्स. Right shares to be issued to the existing holders on 17th August. Existing holders on 17th August. Last time भी मैंने एक्सप्लेन किया था once again. ये इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली right shares are offered to existing holders on 17th August. That means वो cut off date है. So working note number 2, right shares की बात हो रही है, right shares की. ध्यान रखना वहां पे एक डेट मेंशन किया है 17th August. इसको मैं कहूंगा कट ऑफ डेट. इस दिन कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है स्टूडेंट्स. व्हाट दे मीन टू से कि जो लोग एनी पर्सन हु हेल्ड्स शेयर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड एज ऑन 17th August, ऐसा कोई भी आदमी है जिसके पास 17th August को विप्रो का कोई शेयर है, तो ऐसे पर्सन को, टू दैट पर्सन वी हैव टू गिव हिम राइट शेयर. दैट इज द मीनिंग. राइट शेयर्स टू बी इश्यूड टू एग्जिस्टिंग होल्डर्स, है ना, बाहर वालों को तो नहीं देना है. लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था. राइट शेयर्स आर गिवन टू एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑन 17th August. 17th August का मतलब जो लोग 17th August को कंपनी की बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को राइट शेयर्स मिलेगा. सो लुक हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टेबल 17th August से पहले आता है, जुलाई भी उससे पहले आता है, अगस्त 1st August भी उससे पहले आता है, 7th August से पहले. ओके, तो 17th August से पहले जो भी ट्रांजैक्शन है, एनी ट्रांजैक्शन प्रायर टू 17th August मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स. इसका कैलकुलेशन बोनस शेयर जैसा होगा, हेल्ड एंड राइट. रेशियो क्या है? नेक्स्ट लाइन में दिया है. राइट ऑफर्ड वेर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड. 3 हेल्ड, एक राइट मिलेगा. जिसके पास 3 शेयर है ये कंपनी का एज ऑन 17th August, कंपनी उसको एक राइट शेयर देगी. कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है. बोनस राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बोनस फ्री में मिलता है, राइट शेयर्स फ्री में नहीं मिलता है, कंपनी चार्ज करेगी. विल सी दैट लेटर ऑन. पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं. 3 लाख फेस वैल्यू प्लस 60,000 फेस वैल्यू प्लस अगेन बोनस पे भी राइट शेयर्स मिलेगा बिकॉज वी हैव टू गो अप टिल 17th August. तो 5th August का ट्रांजैक्शन काउंट होगा. तो 4,20,000 डिवाइड बाई 10, नंबर ऑफ शेयर्स कम टू 42,000 शेयर्स हेल्ड. तो अभी ये मिसिंग है, हमको फाइंड करना है. सो अगेन 42,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. दिस वे वी क्रॉस मल्टीप्लाइड.
So we got the number of shares held 14,000. स्टूडेंट्स एक बार वापस समझ लेना, लास्ट टाइम भी मैंने किया था. आई एम रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन विद पेंसिल. बाद में मैं इसको कैंसिल करूंगा. व्हाई आई विल कैंसिल, आई विल एक्सप्लेन. लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था. Adjustment number B, right offered were at the rate of 1 share for 3 shares held. So that we have done, we got 14,000 shares. Okay, तो अजय को 14,000 राइट शेयर्स मिलने वाले हैं कंपनी से, बट फ्री में नहीं, पैसा देना है. कितना देना है? at ₹15 per share. And full amount was payable by 30th September. तो अजय को अगर ये राइट शेयर्स खरीदने हैं तो 30th September लास्ट डेट है पेमेंट का. सो टू बैंक अकाउंट आई विल राइट. वर्किंग नोट नंबर 2, 14,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 10 करो, सो यू गेट 1,40,000. ओके, और एक शेयर कितने में दे रहे हैं? 15 रुपीज. सो 14,000 इंटू 15 करो, 2,10,000. आई हैव रिकॉर्डेड दिस ट्रांजैक्शन विद पेंसिल. और डिविडेंड तो हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं करते स्टूडेंट्स. ओके, डिविडेंड तो भूल जाओ, कभी नहीं आएगा. सो वी गॉट 14,000 शेयर्स इंटू 10 फेस वैल्यू, 14,000 शेयर्स इंटू 15, 2,10,000. These answers are correct when there is no renunciation. अगर आप try to recollect, last time भी हमने discuss किया था. Renunciation का मतलब क्या होता है? Company is offering 14,000 shares to अजय. अब अजय की मर्जी है. If he want, he will subscribe. He will purchase all 14,000 shares. अगर वो पूरे 14,000 shares खरीदता है, so these answers are correct. उसके पास एक और ऑप्शन होता है. If he wants कि 14,000 में से 10,000 वो खुद रखेगा, परचेज करेगा, 4,000 शेयर्स वो किसी और को ट्रांसफर कर देगा, आउटसाइडर को. दैट इज नोन एज रिनाउंसिएशन. तो क्वेश्चन में देखने का रिनाउंसिएशन दिया है या नहीं दिया है. इफ इट इज नॉट गिवन, सो दीज आंसर्स आर करेक्ट. 1,40,000, 2,10,000 में पेन से लिखता. बट अगर रिनाउंसिएशन दिया है स्टूडेंट्स, देखो क्या मेंशन किया है. एडजस्टमेंट नंबर सी, एग्जिस्टिंग होल्डर्स मे टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एंटाइटलमेंट either wholly or in part transfer the right to outsiders. अजय चाहे तो पूरे शेयर्स खुद खरीदे या पूरे शेयर्स बाहर वाले को दे दे, या इसमें से कुछ वो खुद खरीद लेगा और कुछ बाहर वाले को दे देगा. ओके, उसके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर होली और इन पार्ट. सबके सब शेयर सब्सक्राइब करो या सारे के सारे शेयर्स किसी और को दे दो. इसमें से कुछ शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी शेयर्स आउटसाइडर्स को दे दो. वो अजय पे डिपेंड करता है. व्हाट ही हैज डन, एडजस्टमेंट डी, अजय एक्सरसाइज ऑप्शन. अजय ने एक्सरसाइज की ऑप्शन एंड व्हाट ही डिड, and subscribed 60% of his entitlement. अजय ने कितने शेयर्स लिए स्टूडेंट? सारे शेयर्स नहीं ले रहा है. सब्सक्राइब मतलब परचेज. इतने शेयर्स वो लेने को तैयार है. कितने शेयर्स? 60%. तो हमें यह आंसर 14,000 आया था. दिस वाज 14,000. ओके, अभी वो कितने शेयर्स खरीदने को तैयार है? सब्सक्राइब कितना कर रहा है वो स्टूडेंट्स? हियर आई एम रिकॉर्डिंग. सब्सक्राइब्ड इज 14,000. सो 14,000 into 60%. So 14,000 into 60% करो. 14,000 into 60%. It comes to 8,400. तो स्टूडेंट्स ये जो हमने आंसर लिखा, that means अभी ये करेक्ट नहीं है, because he is not purchasing all 14,000 shares. कितने शेयर्स वो खरीद रहा है स्टूडेंट्स? Only 8,400 shares, 60%. तो इसके लिए मैं अब आंसर चेंज कर रहा हूँ. Follow the reason why first I recorded with the pencil. मैंने पेंसिल से लिख के आपको क्या समझाया कि प्लीज इफ यू सब्सक्राइब ऑल द शेयर्स, तो 14,000 इंटू 10, 1,40,000. 14,000 इंटू 15, 2,10,000. बट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि नहीं, वो तो कहता है मैं 60% शेयर्स लूंगा. सो 30th September 7 टू बैंक, बिकॉज ये फ्री में नहीं है. वर्किंग नोट नंबर 2, 8,400 शेयर्स लिया, इंटू 10 करो, फेस वैल्यू पर शेयर 84,000 फेस वैल्यू. 8,400 शेयर्स लिया, एक शेयर के लिए उसको 15 रुपए पे करने, तो 8,400 इंटू 15, 1,26,000. ओके, बैलेंस शेयर्स उसने क्या किया? एंड बैलेंस ऑफ राइट, एडजस्टमेंट नंबर डी, ही सोल्ड टू विकास. सोल्ड का मतलब यहां पे होता है रिनाउंस स्टूडेंट्स. ओके, वो कौन से शेयर्स बेच रहा है? जो उसको कंपनी दे रही थी बट उसने लिया नहीं, उसको उसने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, सोल्ड कर दिया. सो कितने शेयर्स? बैलेंस मतलब 40%. तो 14,000 इंटू 40%. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वेन एवर राइट शेयर्स आर रिनाउंस, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एक छोटा सा हम लोग P&L अकाउंट बनाते हैं. ओके, स्मॉल P&L अकाउंट. उसका सिर्फ क्रेडिट साइड इंपॉर्टेंट है. Okay, so profit and loss account. Credit side, we must write buy, sale of right
एंटाइटलमेंट स्टूडेंट्स, ओके, एंटाइटलमेंट, राइट, शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स व्हाट इज राइट एंटाइटलमेंट। कंपनी आपको शेयर्स दे रही है 14,000। अजय ने कितने शेयर्स परचेज किया? 8,400, 14,000 इंटू 60%, ओके। बाकी शेयर्स उसने खरीदा नहीं है, उसको ऑफर लेटर मिला था। वो ऑफर लेटर 14,000 शेयर्स का था ना, उसमें से 8,400 तो उसने खुद रख लिया। अभी वो ऑफर लेटर जो बैलेंस 40% का है वो विकास को दे रहा है, तो शेयर्स रिनाउंस नहीं कर, एक्चुअली रिनाउंसमेंट जो हो रहा है ना वो स्टूडेंट्स राइट एंटाइटलमेंट का हो रहा है। सो इज नॉट सेलिंग शेयर्स, वो ऑफर लेटर आगे दे रहा है विकास को। सो 5,600, हाउ आई गॉट 5,600? 14,000 इंटू 40% इज 5,600 multiply by he sold to Vikas for a consideration of 1.5. तो 5,600 into 1.5 will be 8,400. So P&L credit by sale of right entitlement 5,600 यहां से आया, multiply by 1.5 8,400. So once again इसमें बोनस सिंपल होता है स्टूडेंट्स, बोनस का कॉस्ट हमेशा नील, राइट में आके ध्यान रखने का। कैलकुलेशन इज सिमिलर टू बोनस। एक कट ऑफ डेट दिया था 17 अगस्त, तो 17 अगस्त तक जो भी ट्रांजैक्शन है दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस। 3 लाख प्लस 60 is 4,20,000 डिवाइड बाई 10, 42,000 नंबर ऑफ शेयर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 14,000 शेयर्स। पूरे शेयर्स अगर खरीद लेता है अजय तो ईयर विल रिकॉर्ड 1,40,000, 14,000 into 15 will be 2,10,000. But what he said, he will subscribe only 60% shares. 14,000 into 60%, 8,400 into 10. So we get 44,000. Then again 8,400 into 15, we get 1,26,000. Balance उसने क्या किया? He renounced it to विकास। अब ये रिनाउंस का मतलब क्या? ये शेयर्स एक्चुअली उसने खरीदा नहीं कंपनी से, कंपनी ने उसको एक ऑफर लेटर दिया था, तो वो ऑफर लेटर के उसने दो पार्ट कर लिए। 14,000 में से 8,400 वाला उसने खुद रख लिया, बैलेंस जो 5,600 वाला बच रहा है उसने ले जाके विकास को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, ओके। सो ईयर 5,600 इंटू 1.5 वहां पे दिया एट फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 1.5, सो वी गेट 8,400। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर बेचा है, व्हेन वी परचेज वी रिकॉर्ड ईयर, व्हेन वी सेल शेयर्स वी रिकॉर्ड इट ईयर। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था वंस अगेन, व्हाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों? 14,000 में से उसने 8,400 शेयर खरीदा तो मैंने डेबिट में लिखा, बट दिस 5,600 शेयर्स उसने तो परचेज ही नहीं किया है, मतलब ये 5,600 शेयर्स डेबिट में अपीयर हुआ ही नहीं। तो जो चीज डेबिट में नहीं है अगर उसको बेच रहे हो तो वो क्रेडिट में कैसे आ सकती है स्टूडेंट्स? सिंपल लॉजिकल। आउट ऑफ 14,000 शेयर्स अजय ने 8,400 शेयर्स खरीदा, मैंने लिखा। बैलेंस 5,600 शेयर्स तो उसने खरीदा ही नहीं। रिनाउंसमेंट का मतलब ही एक्चुअली ये होता है कि आप कोई चीज खरीदते नहीं हो, बगैर खरीदे, विदाउट परचेजिंग यू आर सेलिंग एंड इट इज अलाउड, वहां चलता है, इट्स अलाउड स्टूडेंट्स। सो विदाउट परचेजिंग हिज सोल्ड, तो ये डेबिट में अपीयर हुआ ही नहीं, तो एक क्रेडिट में कैसे अपीयर होगा जब बेचोगे? इसके लिए जब ये अनाउंसमेंट होता है तो वी ड्रॉ स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। सो स्टूडेंट्स वी हैव डन दैट एडजस्टमेंट, ए बी सी डी हो गया। नंबर ई देखो डिविडेंड का, लास्ट टाइम भी था ये डिविडेंड ऑफ, देखो क्या लिखा है वहां पे, dividend for year ended 31st March 2007. This was working note number 2, right shares. अभी हम working note number 3 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वर्किंग नोट नंबर 3 डिविडेंड की बात हो रही है। वर्किंग नोट नंबर 3 डिविडेंड, और स्टूडेंट्स वहां पे टर्म पढ़ो क्या लिखा है। नंबर ई एडजस्टमेंट ई, डिविडेंड फॉर ईयर एंडेड 31st March 2007, शॉर्ट में मैंने वाई ई लिखा। 31st March 2007, जब भी टर्म ईयर एंडेड यूज करेगा, लास्ट टाइम मैंने बताया, तो उसको कौन सा डिविडेंड कहते हैं? फाइनल डिविडेंड। अच्छा ध्यान से देखो, ईयर एंडेड मार्च 2007, ईयर एंडेड मार्च 2007 मतलब करंट ईयर है कि पास्ट ईयर? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर एंडेड दिया है तो ईयर एंडेड मार्च 2007, जब भी ईयर एंडेड टर्म आ गया दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड, ओके। अच्छा अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ईयर एंडेड कौन सा साल है? मार्च 2007। स्टूडेंट्स ये करंट ईयर नहीं है, ये पास्ट ईयर है। सिंपल, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 7 है तो क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 8 होगा। सो 31 मार्च 8 लिखा होता तो करंट ईयर होता, ये 31 मार्च 2007 है तो 31 मार्च 2007 मतलब पास्ट ईयर।
तो ये पास्ट ईयर का डिविडेंड आपको अब मिल रहा है, इसके लिए ये फाइनल डिविडेंड है स्टूडेंट्स। ओके, सो दो तरीके से समझ सकते हैं, वंस दे से ईयर एंडेड सो दैट मींस फाइनल डिविडेंड, या डेट से समझ जाने का, दैट इज 31 मार्च 2007। ये डिविडेंड कौन से साल का है? मार्च 2007। फिर देखने का मार्च 2007 करंट ईयर है कि पास्ट ईयर? ऑब्वियसली पास्ट ईयर है, बिकॉज हमारा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2007 से, खत्म होगा मार्च 2008 में, दैट मींस मार्च 2007 इज पास्ट ईयर। तो ये पास्ट ईयर का डिविडेंड है ना, तो इसके लिए अभी मैं लिख देता हूं, लास्ट टाइम मैंने नहीं लिखा था, पास्ट ईयर डिविडेंड paid in current year या declared in current year. Past year dividend paid in current year is final dividend. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डिविडेंड है। ओके, लास्ट टाइम मैंने पॉइंट नंबर 6 लिखाया था स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, फाइनल डिविडेंड का सिंपल रूल कैसे याद रखने का। अभी टेक्निकल पार्ट में नहीं जाएंगे, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था, वो पॉइंट नंबर 6 आप चाहें तो देख लेना, मेरे पास भी ऑलरेडी है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 6 पे रिकॉर्डेड डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करने का। ओके, लुक हियर, ओपनिंग बैलेंस पे, अच्छा रिवर्स में जाने का, मैंने लास्ट टाइम बताया था, राइट शेयर्स पे फाइनल डिविडेंड मिलता है क्या? नेवर। बोनस पे फाइनल डिविडेंड मिलता है क्या? नेवर। फ्रेश परचेज पे मिलता है? यस। ओपनिंग बैलेंस पे मिलता है क्या? यस। मैंने लास्ट टाइम देखो पॉइंट नंबर 6 में लिख दिया था, बेटर आप लोग भी कहीं कॉपी कर लेना। डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस, डिविडेंड मिलेगा, यस, क्रेडिट साइड पे जाएगा। परचेज जो करंट ईयर में आपने परचेज किया उसका भी डिविडेंड मिलेगा, कॉस्ट कॉलम में जाएगा। फाइनल डिविडेंड ऑन बोनस एंड राइट, नो डिविडेंड, देखो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग। जब भी फाइनल डिविडेंड देगा तो बोनस और राइट शेयर्स पे तो फाइनल डिविडेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रेश परचेज और आपका जो ओपनिंग बैलेंस था उस पे आपको मिलेगा। अभी कितना डिविडेंड है? डिविडेंड फॉर ईयर एंडेड मार्च 2007 एट द रेट ऑफ 14%। क्लियरली दे हैव यूज्ड द टर्म 14%। ओके स्टूडेंट्स, तो फेस वैल्यू आपको पता है, ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका फेस वैल्यू कितना है? 3 लाख। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था ना स्टूडेंट्स, वहां पे डिविडेंड पर शेयर था, 4 पर शेयर था, सो फार एज आई रिमेंबर। तो 4 को हमने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया था। यहां परसेंटेज है तो आई एम मल्टीप्लाइंग विद फेस वैल्यू, परसेंटेज है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 लाख इज द फेस वैल्यू इनटू 14%, so it comes to 42,000। ये ओपनिंग बैलेंस। फ्रेश परचेज का भी डिविडेंड मिलता है, यस, जो आपने परचेज किया अभी 60,000 इंटू 14%। अगेन लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेशन किया था वो पर शेयर था, तो जो भी था ₹2, ₹4, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक इट वॉज ₹4 पर शेयर था, तो ₹4 को हमने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया था। हियर इट इज परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू, 60,000 into 14%, so it comes to 8,400। बोनस और राइट पे फाइनल डिविडेंड मिलता है? नहीं, तो उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब इसको रिकॉर्ड क्या करना है? क्रेडिट साइड पे डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए इनकम होता है। डिविडेंड फॉर हाफ ईयर एंडेड, सॉरी फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 एट द रेट ऑफ 14% was declared by the company। डिक्लेयर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टूडेंट्स, आगे पढ़ो। एंड रिसीव्ड बाय अजय ऑन 22 अक्टूबर। तो अजय के हाथ में कब आएगा? 22 अक्टूबर 2007 बाय बैंक अकाउंट। जैसा यहां था ना स्टूडेंट्स, डायरेक्टर अनाउंस, डिक्लेयर्ड, या मैं लिख देता हूं अनाउंसमेंट हो या डिक्लेयर्ड हो, इन्वेस्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिक्लेयर्ड मीन्स प्रॉमिस, अनाउंसमेंट ऑल्सो मीन्स प्रॉमिस। डिक्लेयर्ड एंड अनाउंसमेंट मीन्स नेवर रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ओके? कभी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत करना फॉर डिक्लेरेशन। एक्चुअल देखने का कब रिसिप्ट हुआ। अजय रिसीव डिविडेंड, पॉइंट नंबर ई में लिखा ऑन 22 अक्टूबर। कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 42,000। ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड हमेशा कहां लिखने का? डिविडेंड कॉलम में। और जो आपका फ्रेश परचेज का डिविडेंड है वो कहां लिखने का? अमाउंट कॉलम में। इसको मैंने एक टर्म लिखाया था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यहां जो डिविडेंड लिखा जाता है उसको कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सो दिस वाज वर्किंग नोट नंबर 3। सो दिस वाज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कैसे पता चलता है? एक तो ईयर एंडेड, एक ये टर्म है। दूसरा कैसे मालूम पड़ा? दिस इज ईयर एंडेड मार्च 2007। तो मार्च 2007 करंट ईयर है कि पास्ट ईयर है? हमारा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2007, खत्म होगा मार्च 2008। तो मार्च 2008 हमारे लिए करंट ईयर है, तो मार्च 2007 विल बी पास्ट ईयर। तो पास्ट ईयर का डिविडेंड अगर करंट ईयर में मिल रहा है तो इट इज ऑलवेज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड में क्या करने का? बोनस और राइट का तो कैलकुलेशन नहीं करने का,
ओपनिंग का करने का एंड फ्रेश परचेज का. सो ओपनिंग क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, सो आई मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू. अगर रुपीज में डिविडेंड देगा तो मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर्स. सो ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेशन फ्रेश परचेज का, ओपनिंग बैलेंस गोज टू ईयर, फ्रेश परचेज का डिविडेंड गोज टू कॉस्ट कॉलम. सो दिस इज अ वर्किंग नोट फॉर डिविडेंड. फाइनली एडजस्टमेंट नंबर एफ. On 1st November 2007 he sold 25,000 shares. ये सेम एज डिबेंचर स्टूडेंट्स, इसमें कोई चेंज नहीं. जैसा आप डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करते थे, सेम कंसेप्ट है. आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं 1st November 7 बाय बैंक अकाउंट. कितना शेयर्स बेचा उसने? 25,000 शेयर्स. सो 25,000 इंटू 10, 2,50,000. नेवर ट्राई टू कैलकुलेट डिविडेंड. देखो ओपनिंग, परचेज, किसका भी डिविडेंड मैंने नहीं किया. सेल का भी मत करना, क्लोजिंग का भी मत करना. दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी. हाँ, 22 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है, इसके लिए मैंने, मिलेगा, नॉट मिलने वाला, मिला है, इसके लिए रिकॉर्ड किया. बट ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग का डिविडेंड कैलकुलेट मत करना. सो 25,000 इंटू 10, 2,50,000. कितने में बेचा है? He sold 25,000 shares at the rate of 15. So 25,000 into 15, it comes to 3,75,000. Just like bonds, debenture, government security, students, whenever there is sale transaction, we calculate profit loss. So working note number 4, profit loss as on 1st November 2007. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पे x और कम का कोई कंसेप्ट नहीं है. तो जस्ट राइट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. x इंटरेस्ट, x डिविडेंड, कम डिविडेंड, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं. 3,75,000. कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सो नो नीड टू वरी. अप्लाई द फॉर्मूला. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू multiplied by cost. And students, वो concept debit minus credit and debit minus credit. Okay. Face value of investment sold 2,50,000. Face value debit side 3 lakh plus 60 plus 60 plus 84. सबका टोटल करेंगे just like वो debentures, bonds, government security. It comes to 5,04,000. Face value debit minus क्रेडिट साइड का टोटल नहीं करते, इग्नोर करंट सेल. अबाउ दैट कोई अमाउंट है, जीरो. कॉस्ट पहले डेबिट टोटल कर लेते हैं. 4,20,000 प्लस 96 प्लस 1,26 comes to 6,42,000. इग्नोर करंट सेल, ये 3,75,000 इग्नोर करो. अबाउ दैट कोई अमाउंट है? यस, 8,400. स्टूडेंट्स यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूं माइनस 8,400. सो सॉल्व दिस. 2,50,000 अपॉन 5,04,000 माइनस 0 विल बी 5,04,000. 6,42,000 माइनस 8,400. सो इट कम्स टू 6,33,600. ये इग्नोर किया, उसके ऊपर एक अमाउंट है तो वी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट. ओके, सो वी गेट 6,33,600. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2,50,000 डिवाइड बाई 5,04,000 इंटू 6,33,600. सो कॉस्ट आएगा 314,285.7. सो विल मेक इट 286. 314,286. सो वी गॉट द कॉस्ट प्राइस 3,75,000 minus cost price 314,286. So we get a profit gain of 60,714. All gains are credited to P&L. P&L credit, so investment account debit. Same date when we made the sale. To profit and loss account. Working note number 4. There is a gain of 60,714. यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज सेम एज दैट डिबेंचर्स बॉन्ड. सेम कंसेप्ट, सेम टेक्निक मैंने फॉलो किया. देयर इज नो चेंज ओवर हियर. ओके, अब स्टूडेंट्स लास्ट देखो क्या लिखा उन्होंने. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड वी हैव टू क्लोज. ओके, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अभी अकाउंट्स क्लोज करना है. तो विल स्टार्ट. पहला फेस वैल्यू क्लोज कर लेते हैं. टोटल 360, 420 प्लस 84. सो दिस कम्स टू 5,04,000.
सेम टोटल यहां लिख लेते हैं 5,04,000। 31st March 2008 by balance carried down. Balance figure 5,04,000 is the total minus 2,50,000, so it is 2,54,000. This is balancing figure students. ये balancing figure है 2,54,000. Never try to calculate dividend. Opening balance हो, purchase हो, closing balance हो, ignore dividend. फिर डिविडेंड का टोटल कर लो, क्रेडिट साइड 42,000. ये सेम ऐसे ही हम लोग वहां भी क्लोज करते थे फिक्स इनकम सिक्योरिटी में, डिबेंचर्स बॉन्ड्स में 42,000. फाइन बैलेंसिंग फिगर, यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो एंटायर 42,000 इज बैलेंसिंग फिगर. ये पीएनएल में जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31st March 2008 एंड अगेन इट्स अ बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट्स. अब आ जाओ कॉस्ट कॉलम, पहले डेबिट टोटल कर लेते हैं. 4,20,000 प्लस 96 प्लस 126 प्लस 60714 इट कम्स टू 7,02,714. सेम टोटल यहां लिख लेते हैं 7,02,714. Students, again debentures, bonds, fixed income security जैसा. If market price is given, find market price, cost price, whichever is less. अगर market price नहीं दिया है तो just write balance figure. देखो market price दिया है लास्ट में. Market price of equity share was ₹14 as on 31st March 2008. ₹14 का है clearly students. Students, I am making the working note over here. यहाँ पे working बना रहा हूं मैं. वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा, ये 4 तक हो गया था ये. सो वर्किंग नोट नंबर 5. पहला मार्केट प्राइस देखो कितना लिखा है. अगेन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर वाज ₹14. ₹14 का मतलब 14 पर शेयर है स्टूडेंट्स. अभी ये हमको जो आंसर आया है ना, ये फेस वैल्यू है, वहां पे ₹14 है, 14% नहीं है. ₹14 मतलब पर शेयर. सो 2,54,000 डिवाइड बाई 10. So we get number of shares 25,400 multiplied by 14. So 25,400 multiplied by 14 कर लो. So this is your market price 3,55,600. Again students, वहां पे 14% नहीं का है. मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर वॉज ₹14. तो ₹14 का मतलब पर शेयर. सो 2,54,000 डिवाइड बाई 10 करो, नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, फिर 14 पर शेयर, सो इंटू 14. So we get 355,600. और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ का बैलेंसिंग फिगर. सो 7,02,714 ये टोटल है. ये माइनस कर लेते हैं, माइनस 3,75,000 minus 8,400. So it is 319,314. मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. सो कॉस्ट प्राइस लेस है, ये 355 है, 319 है, तो स्टूडेंट्स विल रिकॉर्ड 3,19,000. ये कॉस्ट प्राइस लेस है ना, सो 319,314. अभी डेफिनेटली ये कॉलम टैली होगा. 8,400 प्लस 3,75,000 प्लस 319,314. सो इट इज टोटल टैली हो गया. टोटल टैली नहीं होता है तो वी राइट बैलेंस फिगर बाई पीएनएल, बट ये टैली हो गया. ओके. सो मार्केट प्राइस वॉज ₹14. ₹14 मतलब नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज फेस वैल्यू नॉट नंबर ऑफ शेयर्स. सो 2,54,000 अपॉन 10, 25,400 मल्टीप्लाई बाई 14 किया. सो वी गॉट मार्केट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आता है, वो बैलेंसिंग फिगर पहले यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखा पहले. फर्स्ट आई रिकॉर्डेड हियर, आई मेड द कंपैरिजन, देन आई डिसाइडेड दिस इज लेस, सो रिकॉर्ड इट ओवर हियर. फिर टोटल मैच करके देख लो. दैट्स ऑल. सो नेवर ड्रॉ एनी टाइमलाइन. Never try to calculate dividend for opening balance, purchase, sale or closing balance. No concept of X and come. Next point students, bonus ध्यान रखना. बोनस का सिर्फ फेस वैल्यू आता है, नो कॉस्ट. राइट शेयर्स ध्यान से देखने का. सारे शेयर्स खरीद लिया आपने तो एंटायर शुड बी रिकॉर्डेड हियर. ओके. बट आपने सब्सक्राइब जितना किया है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि नो यू हैव सब्सक्राइब दीज मेनी शेयर्स, सो ओनली दोज शेयर्स विल बी रिकॉर्डेड हियर. और जो रिनाउंस करोगे वो पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिखना. ओके. देन डिविडेंड ईयर एंडेड का. ईयर एंडेड मतलब फाइनल डिविडेंड कभी राइट और बोनस पे मत देना, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और परचेज पे. ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड कॉलम में लिखना, परचेज का डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में लिखना.
ओके और यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज में कहा है, इसके लिए मैंने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। डिविडेंड पर शेयर कहेगा तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने का। ओके सेल तो सेम एज फिक्स इनकम सिक्योरिटी, फिर अकाउंट क्लोज किया जैसे वहां पे हम करते थे फिक्स इनकम सिक्योरिटी में, कोई चेंज नहीं है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। स्टूडेंट वेरिएबल इनकम का बेस्ट एग्जांपल इक्विटी शेयर होता है। सो दिस इज टाइम। Now we are starting with question number 3 students of variable income security. Question number 3 कर रहे हैं variable income security का। Again कभी timeline मत बनाना स्टूडेंट्स। Never try to calculate dividend. No concept of ex dividend cum dividend. Bonus shares, right shares और final dividend पे ध्यान देना है स्टूडेंट। ओके सो टाइमलाइन तो नहीं बनाएंगे, उसको तो भूल जाओ। सो पहले अकाउंट बना लेते हैं क्विकली भी। Date, particulars, working note, face value. Then we write dividend. Instead of interest, we write dividend and amount. Date, particulars, working note, face value, डिविडेंड एंड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ऑन 1st April 2006 मयूर हैड, सो दिस इज बुक्स ऑफ मयूर, बुक्स ऑफ मिस्टर मयूर। ऑन 1st April 2006 मयूर हैड 30,000 इक्विटी शेयर। हैड का सिंपल मीनिंग होता है ओपनिंग बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस दिया है स्टूडेंट्स। We never draw timeline students. Mayur had 30,000 equity shares in Jai Limited. So account का नाम होगा equity shares in Jai Limited account. Equity shares in Jai Limited. Okay. Mayur had 30,000 equity shares in Jai Limited at book value of 4,50,000. Book value means cost price. Bracket में face value they have said 10 per share. On 22nd June 2006, he purchased another 5,000 shares of the company for rupees 80,000. Directors of Jai Limited announced, students again announced declaration. ये डेट पे हम लोग कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इट इज जस्ट अ प्रॉमिस बाय द डायरेक्टर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, वो डिक्लेरेशन का मतलब अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उस दिन कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक्चुअली किस दिन आपको बोनस मिला, एक्चुअली राइट शेयर्स कब मिला, एक्चुअली डिविडेंड कब मिला, दैट डेट इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअल रिसिट का डेट। ओके, डायरेक्टर्स ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस अ बोनस issue of equity shares in the ratio of 1 share for 7 shares held on 16th August 2006. On 31st August 2006, company made a right issue in the ratio of 3 shares for 8 shares held on payment of rupees 15 per share. Due date for payment was 30th September 2006. Mr. Mayur subscribed, matlab purchased 2/3 of right shares and sold remaining of his entitlement to Vinayak for a consideration of 2 per share. On 31st October 2006, he received dividend from Jai Limited at the rate of 20% for year ended March 2006. Dividend for shares acquired by him on 22nd June are to be adjusted against the cost of purchase. On 15th November 2006, Mayur sold 30,000 shares at a premium of 5 per share. You are required to prepare investment account in the books of Mayur. Assume the books of accounts are closed on 31st March 2007 and shares are valued at weighted average cost. वो नहीं भी mention करेगा तो we follow accounting standard 13, we follow weighted average students. ठीक है? So again वापस start करते हैं. On 1st April 2006, Mayur had 30,000. Mayur had clearly mention किया. So 1st April 2006 to balance brought down 30,000 is number of shares, rupees 30,000 नहीं किया है, 30,000 multiply by face value आगे mention किया है 10, so 30,000 into 10 will be 3 lakh. Never try to calculate dividend. Mayur had 30,000 equity shares in Jai Limited at a book value. Book value means amount is 4,50,000.
अमाउंट इज 4,50,000. ओके, सो फर्स्ट लाइन तो हो गया, फर्स्ट सेंटेंस हो गया. सेकेंड लाइन, ऑन 22nd June ही परचेज्ड अनदर शेयर. परचेज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो लोग. ही परचेज्ड 22nd June, सो 22nd June 2006 परचेज किया है तो टू बैंक अकाउंट. डिटेल्स देखो वहां पे क्या लिखा है. ही परचेज अनदर 5,000 शेयर. सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू, सो दिस विल बी 50,000. Never try to calculate dividend. 5,000 shares of the company for rupees 80,000 students. Directly हमको cost दे दिया 80,000. Never try to calculate dividend. So as compared to debentures ना, या working note भी कम होते हैं, जल्दी solve होता है. 3 important point है, right shares, bonus और dividend, वो ध्यान रखना है. Third line, directors of Jai Limited announced the bonus issue of equity share in the ratio of 1 share for 7 shares held. वर्किंग नोट नंबर 1, बोनस की बात हो रही है, बोनस शेयर्स की बात हो रही है. अगेन सम रेशियो दिया है, हेल्ड एंड बोनस. डायरेक्टर्स अनाउंस अ बोनस ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर्स हेल्ड. ऐसा ही लिखा है, 7 शेयर्स हेल्ड एज ऑन 16th August. तो 16th August तक जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे कंसिडर होगा. तो अप्रैल भी कंसिडर होगा, ये जून वाला भी कंसिडर होगा. 3 लाख प्लस 50,000, सो टोटल फेस वैल्यूज 3,50,000. बट यहां नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स. तो 3,50,000 को डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं. सो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर मयूर इज 35,000. फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 35,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 7. So we get 5,000 as bonus shares. बोनस कब मिला स्टूडेंट्स, आगे कुछ मेंशन नहीं किया है. नेक्स्ट लाइन दे आर टॉकिंग अबाउट राइट शेयर्स. तो वापस से प्रीवियस लाइन पढ़ लो. डायरेक्टर्स ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस अ बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर्स हेल्ड ऑन 16th August. सो 16th August ही डेट होगा, 16th August. 2 बोनस. एक्चुअल डेट रिसिप्ट का नहीं बोला है, अनाउंसमेंट का डेट 16th August है. उसको कब मिला दैट इज नॉट स्पेसिफाइड. तो इन दैट केस ना स्टूडेंट्स वी आर हेल्पलेस. तो अनाउंसमेंट का डेट मैंने लिखा, बट प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था एक्सप्लेन, अनाउंसमेंट का डेट प्रॉमिस होता है, नो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दैट डेट. बट यहाँ पे ना रिसिप्ट डेट नहीं कहा है, जस्ट कहा है कि 16th August को अनाउंस हुआ. अब बोनस कब मिलेगा दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, उसको मिलेगा. सो मैंने 16th August. क्या ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि अनाउंसमेंट डेट एंड रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स इज ऑन द सेम डे. तो इसके लिए मैंने 16th August लिखा. हाउ मेनी शेयर्स, 5,000. तो 5,000 इंटू 10 becomes 50,000. डिविडेंड का भी रिकॉर्ड मत करना. कॉस्ट फॉर बोनस इज ऑलवेज nil. 16th August. नेक्स्ट 31st August 2006 company made a right issue in the ratio of 3 shares for 8 shares held. अभी राइट शेयर्स की बात हो रही है. वर्किंग नोट नंबर 2, राइट शेयर्स. अगेन रेशियो दिया है हेल्ड and how many right shares that's we have to look for. On 31st August, company made a right issue of in the ratio of 3 shares for 8 shares held. जिसके पास 8 शेयर है उसको 3 राइट शेयर मिलेगा. ऑन पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर, फ्री में नहीं मिलेगा. 31st August ना, तो 1st April भी काउंट होगा, 22nd June भी काउंट होगा, 16th August भी, बिकॉज 31st August तक जाना है हमको. सो तीनों ट्रांजैक्शन 3 लाख प्लस 50 प्लस 50. So total is 4 lakh face value है students, but divide by 10 कर लो, you will get number of shares 40,000. यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं ये कैलकुलेशंस में. ओके, इसके लिए फेस वैल्यू को डिवाइड बाय 10 कर रहा हूं. अगेन विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड विल गेट द आंसर. देखते हैं 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 इट कम्स टू 15,000. अगेन स्टूडेंट्स मैं पेंसिल से पहले लिखता हूं, आपको समझा देता हूं. Suppose if we purchase all 15,000 shares, तो आप यहां लिखोगे 2 बैंक. वर्किंग नोट नंबर 2, 15,000 शेयर खरीद रहा है. कितने में? They have said on payment of ₹15. So 15,000 shares into 15 करेंगे तो 2,25,000. So cost is 2,25,000. 15,000 shares multiply by 10 करेंगे तो फेस वैल्यू आ जाएगा. If Mayur subscribes all shares, मयूर सारे राइट शेयर्स खरीदता है, so this answer is correct. ठीक है,
बट हमेशा वो लोग अनाउंसमेंट अक्सर देते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल फाइंड इट इन द क्वेश्चन. ओके, सो आगे देखो, ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज 30th सितंबर. यहाँ पे हमको 30th सितंबर लिखना है. आगे क्या मेंशन किया है, मयूर सब्सक्राइब 2/3 ऑफ राइट शेयर्स, मतलब वो पूरे शेयर्स नहीं खरीद रहा है स्टूडेंट्स 15,000. सो दैट मीन्स आई कांट रिकॉर्ड दिस आंसर. इसके लिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं. पूरे शेयर्स खरीदेगा, सो दिस आंसर वाज करेक्ट, बट ही इज नॉट सब्सक्राइबिंग ऑल द शेयर्स. क्लियरली वहां पे मेंशन किया है, विल सब्सक्राइब 2/3. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन 2/3 शेयर्स. बाकी 1/3 क्या किया वो देखते हैं वो भी. सो 15 सब्सक्राइब का है ना, सब्सक्राइब मतलब परचेज. 15,000 into 2/3. 15,000 into 2 divided by 3. That means वो कितने शेयर्स खरीद रहा है, 10,000 शेयर्स. सो 10,000 फेस वैल्यू है, 10,000 into 10. सो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 लाख. सो 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट. दिस वॉज वर्किंग नोट नंबर, भूल गया मैं लिखना. बोनस वॉज 1, राइट शेयर्स का 2 है. दिस इज 1 लाख. 10,000 शेयर्स खरीदा, मल्टीप्लाई बाय हमने 10 किया, सो वी गॉट 1 लाख. फॉरगेट डिविडेंड. ओके, डेट क्या था, 30th सितंबर. उन्हें कहा है पेमेंट शुड बी मेड बाय 30th सितंबर. On 31st August, company made right issue in the ratio of 3 shares for 8 shares held on payment of 15 per share. Due date for payment was 30th September 2006. 10,000 shares subscribe किया, so 10,000 into 10. फिर 10,000 shares subscribe मतलब परचेज करना है. कॉस्ट प्राइस कंपनी ने कितना रखा है, 15. So 10,000 into 15 करेंगे तो 1,50,000. ओके, बैलेंस 1/3 क्या किया, देखो आगे पढ़ो. मयूर सब्सक्राइब 2/3 of the right shares were recorded and sold remaining of his entitlement to Vinayak for a consideration of 2 per share. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा P&L अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट्स. याद आया, राइट शेयर्स, रिनाउंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और कौन सा साइड पे लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड पे. तो एक छोटा P&L अकाउंट बना लेंगे एंड क्रेडिट साइड विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन. So buy, sale of right entitlement. जो उसको ऑफर मिल रहा था ना कंपनी की तरफ से, उसने वो ऑफर ट्रांसफर किया, शेयर्स ने ट्रांसफर किया. कितना, बैलेंस का है ना स्टूडेंट्स, बैलेंस. सो बैलेंस उसने रिनाउंस किया. 15,000 शेयर्स, 2/3 उसने ले लिया, सो बैलेंस मतलब 1/3. So 15,000 into 1/3 will be 5,000. So 5,000 shares he transferred, sold. Remaining he sold to whom? इसका नाम दिया था पर्सन का, to Vinayak for a consideration of 2 per share. So 5,000 into 2, credit side P&L के will write 10,000. Okay. So by sale of right entitlement 5,000 into 2, 10,000 P&L credit में जाएगा. So right share जो वो सब्सक्राइब करता है परचेज, हमेशा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट में जाएगा. राइट शेयर जो रिनाउंस होता है वो हमेशा P&L क्रेडिट में जाएगा. फर्स्ट लेक्चर जो था या फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, देखो यहाँ लिखा दिया था, राइट शेयर सब्सक्राइब डेबिट, राइट शेयर रिनाउंस P&L क्रेडिट. हमने नोट्स में लिख लिया ऑलरेडी. ओके, सो राइट शेयर डन. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा. ऑन 31st October 2006 रिसीव्ड डिविडेंड. रिसीव्ड डिविडेंड क्लियरली कहा उन्होंने, 31st October 2006 रिसीव्ड डिविडेंड. सो बाय बैंक अकाउंट. ये वर्किंग नोट 1, 2, सो वर्किंग नोट नंबर 3. डिविडेंड की बात हो रही है, फेस वैल्यू भूल जाओ. हाउ मच डिविडेंड, एट द रेट ऑफ 20%. सो वर्किंग नोट नंबर 3, दे आर टॉकिंग अबाउट डिविडेंड. कौन सा डिविडेंड है, फाइनल है क्या, आगे पढ़ लेते हैं. On 31st October, he received dividend from Jai Limited at 20% for year ended. Year ended आ गया स्टूडेंट्स, 31st March 2006. अभी देखने का ये करंट ईयर है कि पास्ट ईयर है. हमारा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2006, खत्म होगा मार्च 2007. तो मार्च 2007 करंट ईयर है. सो मार्च 2006 क्या हो गया, पास्ट ईयर. सो दैट मीन दिस इज विच डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है. ओके, समझ में आया हाउ आई डिसाइडेड. सो देखने का साल जो दिया है वो करंट ईयर है कि पास्ट ईयर. सो मार्च 2006, 31st March 2006 इज पास्ट ईयर. मैं लिख देता हूं, इट इज अ पास्ट ईयर.
तो पास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब वो क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड का कैलकुलेशन कैसा करते हैं, मैंने अगेन पहले भी बताया। राइट पे मिलेगा क्या फाइनल डिविडेंड, नो। बोनस पे मिलेगा क्या, नो। फ्रेश परचेज पे डिविडेंड होगा, यस। ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड होगा, यस। सो ये सिर्फ दोनों का कैलकुलेशन करना है। हाउ मच दे हैव सेड, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%। सो पहला ओपनिंग बैलेंस, परसेंटेज का है तो फेस वैल्यू पे अप्लाई करना है, 3 लाख इंटू 20%। सो 3 लाख इंटू 20% इज 60,000। फिर जो हमने फ्रेश परचेज किया था उसका फेस वैल्यू 50,000 इंटू 20%, तो 10,000। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड हमेशा डिविडेंड कॉलम में लिखना और फ्रेश परचेज का डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में। इसको कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इसको कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ओके, सो क्योंकि यहां पे परसेंटेज में है इसके लिए फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अगर 20 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर कहेगा तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू। सो राइट और बोनस पे फाइनल डिविडेंड नहीं देते। ओपनिंग बैलेंस परचेज का कैलकुलेशन करो, ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड यहां पे लिखा और फ्रेश परचेज का डिविडेंड यहां पे लिखा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट देन व्हाट दे हैव सेड, 15th November 2006 Mayur sold 30,000 shares। 15th November 2006 Mayur sold, so by bank account कितने शेयर्स बेच दिए उसने, 30,000 इक्विटी शेयर। सो स्टूडेंट्स 30,000 इज नंबर, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, सो इट कम्स टू 3 लाख। नेवर ट्राई टू कैलकुलेट डिविडेंड। कितने में बेचा, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। स्टूडेंट्स प्रीमियम का मतलब क्या, फेस वैल्यू शेयर का 10 है, प्रीमियम ऐड होता है, सो वी विल ऐड प्रीमियम। हाउ मच दे हैव सेड, 5। सो कितने में बेचा, दैट मीन्स 15 रुपीज में। फॉलोड हाउ आई गॉट दिस, दे हैव सेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, के लिए लिखा है ना स्टूडेंट्स वहां पे। सो फेस वैल्यू शेयर का 10 है, प्रीमियम they have said at 5 of rupees 5 per share, so 10 plus 5 15, so he sold 30,000 shares into 15, so we got 4,50,000. Whenever there is sale we calculate profit loss। मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 4 होगा, प्रॉफिट लॉस एज ऑन 15th November 2006। there is no concept of X income, तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस पता है 4,50,000, कॉस्ट प्राइस पता है नहीं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला फॉलो करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू, FV लिख दिया मैंने शॉर्ट में, इनटू कॉस्ट। ओके, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 3 लाख, सो न्यूमरेटर आ गया हमारे पास 3 लाख अपॉन फेस वैल्यू का पहले डेबिट टोटल करो, 3 लाख प्लस 50 अगेन 50 एंड 1 लाख, सो टोटल डेबिट साइड फेस वैल्यू इज 5 लाख। गो टू क्रेडिट साइड, टोटल मत करना, इग्नोर करंट सेल, अबाउट दैट कोई अमाउंट है, नो तो 0। सेम वे कॉस्ट कॉलम, पहले डेबिट टोटल करते हैं, 4,50,000 प्लस 80 प्लस 1,50,000, 6,80,000, 680। इग्नोर करंट सेल, अबाउट दैट कोई अमाउंट है, यस 10,000 है ना, तो 10,000 माइनस होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 6,80,000 minus 10,000 is 6,70,000, so into 6,70,000, so we get 4,02,000 cost price, 4,50,000 selling price minus 4,02,000 cost price, so there is a gain of 48,000। ये हमको आया gain। gains are credited to P&L, P&L credit होगा, so investment account debit होगा। to profit and loss account, working note number 4,
will record only under cost column. How much we got? 48,000. So ये सेल का जो वर्किंग है ना स्टूडेंट्स, इट इज सेम एज फिक्स इनकम सिक्योरिटी. ये क्या था? ये सेलिंग प्राइस था. दैट सेट शेयर्स आर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर. फेस वैल्यू शेयर का 10 है तो प्रीमियम 5, प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट होता है तो माइनस करते हैं. सो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सो वी हैव सोल्ड इट फॉर 15. सो 30,000 शेयर्स इंटू 15 किया था हमने. ओके, 4,50,000. यहाँ मैं पेंसिल से लिख देता हूँ. This was 30,000 shares sold multiplied by 15, so we got 4,50,000. Okay, then फिर हमने profit loss find किया, we got 48,000 profit. Finally, there is nothing else, students. Assume that books of accounts are closed on 31st March. Shares are valued at weighted average, and nothing else is given. This was the final adjustment. तो close करना start करते हैं. पहला face value close करते हैं. 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, so 5 लाख टोटल है. सेम टोटल क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं और बैलेंस हम फिगर फाइंड कर लेंगे. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st March 2007. So 5 lakh minus 3 lakh. So balance figure is 2 lakh. This is the balance figure. Never try to calculate dividend. भूल जाओ इसको. टोटल करो. डिविडेंड का टोटल इज 60,000. सेम टोटल विल रिकॉर्ड ईयर. बैलेंस फिगर फाइंड करो. यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, सो बैलेंस फिगर विल बी 60,000. ऑलवेज गोज टू P&L, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 31st March 2007. इसको सर्कल कर लेते हैं. फाइनली कॉस्ट कॉलम का पहले टोटल करते हैं. डेबिट साइड 450 प्लस 80 प्लस 1,50,000 प्लस 48. टोटल इज 7,28,000. 7,28,000 टोटल. सेम टोटल मैं यहां लिख देता हूं. $7,28,000. अगर मार्केट प्राइस दिया है तो फॉलो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो राइट बैलेंस फिगर. स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई मार्केट प्राइस नहीं दिया है. लास्ट में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मयूर. Assume books of accounts are closed on 31st March. Share are valued at weighted average. So market price is not given. Just find balance and figure. 7,28,000 minus 4,50,000 minus 10,000. So balance and figure is 2,68,000. ये balance and figure है. Because since market price is not given, we just found the balance and figure. Okay, 2,68,000. For variable income security students, never draw any timeline. तो पहले timeline नहीं बनाना. Never try to calculate dividend for opening balance, purchase, sale और closing balance. भूल जाओ. No concept of ex dividend and cum dividend. वो concept भी नहीं है आपको. Okay? Now, what is important? Bonus shares, right shares and dividend. ये 3 point important है. Okay? ये profit loss on sale, it is same as fixed income security. Bonus, right और dividend. Bonus के लिए हमेशा वो लोग एक ratio देते हैं. Apply that ratio, get the number of shares, multiply with face value, record year, but cost is always 0. अच्छा ध्यान रखना, bonus, right, dividend, वो एक declaration date होता है. declared या अनाउंस किया तो उस दिन कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते. एक्चुअली बोनस कब मिला, एक्चुअली राइट शेयर्स हाथ में कब आया, डिविडेंड हाथ में कब आया, व्हेन यू रिसीव्ड ऑल दीज थिंग्स, दैट डेट इज इंपॉर्टेंट. अगर वो डेट नहीं दिया है स्टूडेंट्स तो अनाउंसमेंट डेट ही हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं. रिमेंबर दिस, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बता दिया था. अनाउंसमेंट डेट इज जस्ट अ प्रॉमिस, डिक्लेरेशन डेट इज ऑल्सो अ प्रॉमिस. नो ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड. ये दोनों के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो जस्ट प्रॉमिस है. जिस दिन एक्चुअली बोनस मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, दैट डेट शुड बी कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. तो बोनस हमने लिख लिया. राइट का अगेन दे हैड गिवन अस रेशियो. ये सब मैंने टोटल किया था 4 लाख. 4 लाख डिवाइड बाय 10, 40,000. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15,000. अगर मयूर पूरा 15,000 शेयर्स लेगा तो यहाँ पे 15,000 इंटू 10 लिखना और 15,000 इंटू 15 यहाँ पे आएगा. बट क्वेश्चन में कहा है नहीं, मयूर कहता है मैं सब्सक्राइब करूंगा, परचेज करूंगा 2/3 शेयर. सो 15,000 इंटू 2/3 10,000. 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 15. बैलेंस का उसने क्या किया, 2/3 यहाँ लिखा. बैलेंस मतलब 1/3. रिनाउंस किया. रिनाउंस मतलब उसने खरीदा नहीं,
कंपनी से जो लेटर मिला था वो लेटर इटसेल्फ उसने ट्रांसफर कर दिया, विनायक नाम दिया है कुछ उसका, दैट पर्सन का, ओके, हाँ, इट वॉज गिवन विनायक, तो जो उसको लेटर मिला था वो ऑफर लेटर ही उसने विनायक को दे दिया। सो 5000 शेयर, और जब भी शेयर रिनाउंस होता है रिकॉर्ड इन पीएनएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मत लिखना, सिंपल रीजन अगेन बता देता हूं। कितने शेयर सब्सक्राइब किया? 10,000, तो मैंने वो यहां लिखा। क्या उसने 5000 शेयर सब्सक्राइब किया? नहीं। क्या उसने 5000 शेयर्स परचेज किया? किसने? मयूर ने। नहीं। अगर परचेज करता तो मैं यहां लिखता ना, तो 5000 शेयर जब यहां पे नहीं है डेबिट में, इट डजंट अपीयर्स ऑन डेबिट साइड, सो इफ यू आर रिनाउंसिंग सच शेयर्स ना यू कैन रिकॉर्ड इट ऑन क्रेडिट साइड। जो चीज डेबिट में नहीं है तो उसका इफेक्ट क्रेडिट में भी नहीं हो सकता। तो 5000 शेयर्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखा बाय सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। 5000 शेयर्स उसने 2 रुपए में बेचा विनायक को, इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। सो 10,000 ये पीएनएल का क्रेडिट साइड है, एग्जाम में ऐसे छोटा सा पीएनएल बनाने का, ओके। देन स्टूडेंट्स डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा साल बोला? ईयर एंडेड मार्च 2006। तो जो साल बोलता है ना वो साल देखने का, दैट ईयर इज करंट ईयर के पास्ट ईयर। अकाउंट स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2006, सो मार्च 2006 मतलब इसके पीछे की डेट हो गई ना, तो पास्ट ईयर हो गया। अप्रैल 2006 में स्टार्ट कर रहे हो, मार्च 2007 में बंद करोगे, तो मार्च 2007 इज करंट ईयर 6-7। ये मार्च 2006 है तो पास्ट ईयर है, तो पास्ट ईयर का डिविडेंड हमेशा फाइनल होता है, सो दिस इज फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड में क्या करते हैं? कभी भी फाइनल डिविडेंड बोनस और राइट शेयर्स पे कैलकुलेट नहीं होता है, सो आई इग्नोर दिस। ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेट किया, रिकॉर्डेड अंडर डिविडेंड कॉलम। परचेज का भी, ये परचेज का रिकॉर्ड किया, या 10,000 कैलकुलेट किया, रिकॉर्डेड अंडर कॉस्ट कॉलम। इसको कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो कॉस्ट कॉलम में गया, ओके। परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू, ₹2, ₹4 पर शेयर, 10 पर शेयर। अगर पर शेयर कहेगा तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना। शेयर्स वर सोल्ड एट ₹5 प्रीमियम, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम हमेशा ऐड होता है तो बेचा 15 में। 30,000 शेयर सोल्ड इनटू 15, 4,50,000। फिर हमने ये पीएनएल फाइन किया, वी गॉट गेन, गेन मैंने यहाँ पे लिखा। फिर अकाउंट्स क्लोज किया जैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटी में करते थे सेम वे, बट यहाँ पे डिविडेंड नहीं आता है। पहला ये टोटल किया, वी गॉट 5 लाख, सेम टोटल ईयर, बैलेंस फिगर। डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करते हैं, टोटल किया 60,000, सेम टोटल ईयर, बैलेंस फिगर। कॉस्ट कॉलम टोटल किया 7,28,000, सेम टोटल ओवर ईयर। इफ मार्केट प्राइस इज गिवन, फॉलो दैट कंसेप्ट, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो राइट बैलेंस फिगर, या मार्केट प्राइस नहीं है सो आई हैव रिकॉर्डेड ओनली बैलेंस फिगर। तो स्टूडेंट्स नोटिस, एज कंपेयर टू वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का सोल्यूशन बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स। देयर आर नॉट मेनी ट्रांजैक्शन, और वर्किंग नोट कितने हैं? सिर्फ 4 वर्किंग नोट। वहां पे 10-11 तक वर्किंग नोट्स बनता था, बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था। तो एज कंपेयर टू डिबेंचर्स ये सॉल्यूशन वाइज इजी होता है स्टूडेंट, छोटा होता है इसका सॉल्यूशन। वहां पे कितने वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते थे, अगर इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट। ऐसे ये पूरा बनाया था, देन ऑन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो आई मेड वर्किंग्स, ओके, बहुत सारे वर्किंग्स होते थे। बट फॉर शेयर्स 4 वर्किंग में खत्म। इंपॉर्टेंट इज बोनस, राइट एंड डिविडेंड, इस पे ध्यान दो। बाकी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस परचेज डेबिट में, सेल क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। फिक्स इनकम में भी ऐसा ही होता था, ओके। सो ये नया है हमारे लिए, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एंड डिविडेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट्स ऑल।